students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the Net Connect. Things to learn. What is internet? Uses of internet terms, basic requirement for internet connection, internet etiquettes. तो इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे. आजकल आपको पता ही है हर घर में कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है. तो इंटरनेट के यूजेस के बारे में जानेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और इंटरनेट टर्म्स एंड एटिकेट्स के बारे में भी जानेंगे. रोबो. Hey Adi, Adia, what's up? Why are you so sad? Adi and Adia, dear Robo, we want to research for my holiday homework project on net, but we don't know how to use the internet. Can you help us, Robo? Sure, Adi. Let's learn about the network which connects millions of people around the globe. That is the internet in this chapter. Adi and Adia, okay, please explain. तो इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है. इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड computers where one computer can be connected to any other computer or computerized device in any part of the world. The interconnection of networks all across the world is known as internet or simply net. It is very well organized and is a storehouse of information. Internet is provided by internet service providers, ISPs. Many companies across India and the globe provide internet connections. Some of these companies are Airtel, Jio, Fiber, MTNL, BSNL, etc. तो इंटरनेट जो होता है ये काफ़ी कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करता है, और इसके थ्रू आप वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर के थ्रू किसी भी पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हो. ना सिर्फ कनेक्ट हो सकते हो, उनके साथ अपने डेटाज वगैरह, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह भी शेयर कर सकते हो. ये एक वेल ऑर्गेनाइज एक आपका प्रोसेस होता है जिसमें आपके स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन को रखा जाता है और शेयर किया जाता है. Critical thinking, who provide you the internet connections. Uses of internet helps us in many ways. Let us learn about some of them. Searching information. Internet is very vast and has information on almost everything. We can use internet to access all the information. We can also search for jobs on the internet. तो इंटरनेट से आप अपनी चॉइस के कोई भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो. साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं वो जॉब्स भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं. Listening to music and watching movies. You can use the internet to listen to songs and watch movies. YouTube is a video sharing service that is one of the most popular apps on the internet. तो आप इंटरनेट पे म्यूज़िक्स भी सुन सकते हो और मूवीज़ भी देख सकते हो. जैसे आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूट्यूब है, तो यूट्यूब में आप डिफरेंट लैंग्वेज के सॉन्ग सुन सकते हो, मूवीज़ वगैरह देख सकते हो. Playing games. The internet also provides a wide range of games that you can either play online or download on your computer. Even आप इंटरनेट पे गेम्स भी खेल सकते हो. ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ गेम्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ गेम्स होते हैं जो आप खेल सकते हो. ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. Internet helps us to communicate with a person sitting miles away. Email is an electronic form of sending messages between computers using the internet as medium. You can send not only text but also pictures, sound and videos or files using the email. तो पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, लेटर्स भेजे जाते थे, लेटर्स भेजने में बहुत टाइम लगता था. ठीक है, अब क्या हो गया, ईमेल का ज़माना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का ज़माना आ गया है, जिसके थ्रू आप विद इन अ सेकेंड किसी पर्सन को मेल भेज सकते हैं. और इसमें ना सिर्फ आपके टेक्स्ट होते हैं बल्कि पिक्चर्स, साउंड, वीडियोज़, फाइल्स भी इंक्लूड होती है. Shopping. Internet is a great platform to buy or sell different things online. Buying or selling things anytime without going anywhere through internet is known as online shopping. OLX is the website for selling old items. आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, जैसे आपने अमेजोन देखा है, फ्लिपकार्ट देखा है. इस पर आप क्या करते हो, आप घर बैठे शॉपिंग करते हो, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होती. इवन OLX पे एक साइट है, वेबसाइट है, जिस पे आप अपने पुराने आइटम्स भी बेच सकते हो. Online banking. We can avail online services like ticket bookings, paying bills, hotel bookings, etc. Paying bills and make transactions are known as online
बैंकिंग। तो आप ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हो, आप अपने बिल पे कर सकते हो, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, आप होटल वगैरह की बुकिंग कर सकते हो, ठीक है, ट्रांजैक्शंस वगैरह भी आप कर सकते हो। Social networking. Internet helps us to connect to our friends and family through various social media websites like facebook.com, twitter.com, etc. तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी कनेक्ट हो सकते हो, जैसे कि फेसबुक वगैरह है, ट्विटर है, इस पे आप अपनी साइट बना करके, अपनी आईडी बना करके और लोगों के साथ आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हो, उनके साथ चैटिंग वगैरह कर सकते हो। Chatting, there are several chatting portals on the internet. We can do live chat virtually with our relatives, friends and family. Chatting can be done individually or with a group of people in virtual chat rooms. तो चैटिंग रूम्स या चैटिंग पोर्टल जो होते हैं ये भी आपको इंटरनेट में मिल जाते हैं, जिनके थ्रू इजीली आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली से चैट कर सकते हो वर्चुअली। थिंग्स एंड शेयर। हाउ कैन द इंटरनेट हेल्प अस टू मेक आवर डेली टास्क ईजियर। तो आपको बताना है कि इंटरनेट कैसे आपके डेली टास्क को ईजियर बनाता है। यू शुड नो बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड बीइंग ऑनलाइन। तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो इसका मतलब आप ऑनलाइन हो। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, टिक द पॉइंट्स टू शो हाउ यू वुड लाइक टू यूज़ द इंटरनेट। तो आपको बताना है और आपको टिक करना है उन पॉइंट्स को जो आपको बताता है कि आप कैसे इंटरनेट यूज़ करते हो या करना चाहते हो। Now internet terms, there are few important terms related to the internet. Let us learn about them. तो पहला है बच्चों वेबसाइट। A website is a collection of related web pages. It is like a book that contains many pages. The first page of any website that appears when we open that website is called its home page. Each website has a unique website address. This unique address is called URL. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वेबसाइट जो होती हैं ये कलेक्शन ऑफ आपके रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं और इसमें आपके बहुत सारे पेजेस कंटेन होते हैं जिसमें आपके अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। हर एक वेबसाइट का पहला पेज जो होता है ये उसका होम पेज कहलाता है, ठीक है, और हर एक वेबसाइट का अपना एक URL होता है, मतलब उसका एक नाम होता है, उसका एक एड्रेस होता है। Simplified learning, express your views on the topic impact of internet in our day to day life। तो इस टॉपिक पे आपको अपने विचार जो है व्यक्त करने हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, फाइंड आउट द URL ऑफ योर स्कूल्स वेबसाइट। तो अपने स्कूल वेबसाइट का आपको URL फाइंड आउट करना है। Web page, the page that make up the World Wide Web are known as a web page. A web page can contain any type of information and can include text, pictures, animation and sound. A web page is created using a language called HTML, hypertext markup language. It can be seen or accessed using a web browser. It has its own web address. तो web page जो होता है ये web जो आपका www है, यहाँ पे आपका एक वेब पेज जो है वो आपका काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अलग अलग टॉपिक में। इसमें आपका टेक्स्ट भी होते हैं, पेजेस भी होते हैं, पिक्चर्स भी होते हैं, एनिमेशन भी होते हैं और साउंड भी होते हैं। एक वेब पेज जो होता है ये HTML के द्वारा क्रिएट किया जाता है। वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड टू ओपन अ वेबसाइट ऑन www. Some commonly used web browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari and Opera। वेब ब्राउज़र जो होता है ये आपकी एप्लीकेशन होता है जो भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो बेसिकली आजकल आपने देखा आप Google Chrome यूज़ करते होंगे, Mozilla Firefox यूज़ करते होंगे, Microsoft Edge, मतलब इनमें से कोई भी एक वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, नेम द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑफ Windows 10। World Wide Web. World Wide Web is a collection of interconnected pages that contains texts, pictures, audio and movies. It was developed by Tim Berners-Lee, a software engineer in 1989. World Wide Web is popularly known as Web or W3. These specially formatted documents are text documents created in HTML formatting language.
तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका कलेक्शन माना जाता है इंटरकनेक्टेड पेजेस का, मतलब जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड पेजेस होते हैं उनका ये कलेक्शन माना जाता है, जिसमें टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड मूवीज होती हैं। और सबसे पहले इसे डेवलप किया गया था टिम बर्नर ली के द्वारा। तो इसे WWW भी कहा जाता है और W3 भी कहा जाता है। और इनका जो डॉक्यूमेंट होता है उसको स्पेशली फॉर्मेट किया जाता है HTML में। Web servers. Websites are hosted on dedicated computers known as web servers. These machines send a web page to our browser when we request it. तो वेबसाइट्स जो होती हैं वो होस्ट करती हैं किसी भी डेडिकेटेड कंप्यूटर पे, जिन्हें हम वेब सर्वर्स कहते हैं। ये मशीन्स जो होती हैं ये वेब पेजेस को सेंड करती हैं टू आवर ब्राउज़र जब हम इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं। Search engine. With the help of a search engine, we are able to get all types of information. Search engine can be defined as a program that searches through a collection of web pages for the desired information. The most popular search engine is Google. Other are Yahoo Search, AOL, Bing, Ask, etc. सर्च इंजन जो होते हैं ये किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें सर्च बार होती है जिसमें आप कोई भी एड्रेस या कोई भी नाम टाइप करते हैं। सपोज़ आपको पॉपुलेशन के ऊपर या पोल्यूशन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप पोल्यूशन टाइप करेंगे तो आपको रिलेटेड वेबसाइट्स या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पोल्यूशन के ऊपर। यू शुड नो लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन आर द फाउंडर्स ऑफ गूगल। तो बच्चों याद रखना ये दोनों जो हैं फाउंडर हैं गूगल के। नाउ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। तो आपको अपनी टीचर की हेल्प लेनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चों को इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो आप किसी की बड़े की हेल्प ले सकते हैं और इनको आपको परफॉर्म करना है। Basic requirements for internet connection. To connect to the internet, you need the following. A computer is required to access all the information on the internet. Modem is required to connect a computer to the internet connection. It may or may not be connected to a telephone line. Modem is provided by the internet service provider ISPs. Internet connection is required to use the web. It provided by ISPs such as Tata Communications, Reliance Communication, Airtel, BSNL, MTNL, etc. ISP is a company that provides you internet connections and services for an annual or monthly fees. Web browser must be installed in the computer. It is used to browse search the internet. तो अब हम जान लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम ज़रूरी होता है ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। इसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो या ना हो, मतलब ये उससे कनेक्टेड भी हो सकता है और नहीं भी कनेक्ट हो सकता। मॉडेम जो होता है ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन जो होता है ये वेब को यूज़ करने के लिए, उसको चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये एक ISP के द्वारा चाहिए होता है, जो कि आपको बहुत सारे कम्युनिकेशंस टेलीकॉम जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। ISP एक कंपनी है जो कि आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है और आपको सर्विस देती है। इसके लिए आप या तो एनुअली या फिर मंथली फीस देते हैं। वेब ब्राउज़र जो होता है ये आपके कंप्यूटर में ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए। इसके थ्रू ये आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप जैसे वेब ब्राउज़र अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ सर्च नहीं कर पाएंगे। You should know nowadays internet connection is available in a portable device called data card. It looks like a pen drive and can be inserted into the port of the computer to access internet. आजकल तो आपने देखा होगा पेन ड्राइव की तरह एक डेटा कार्ड आता है, आप उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो और आप कहीं भी इंटरनेट एक्सेस ले सकते हो। Think and share. Rahul's telephone line is not working. Will he be able to connect to the internet? अगर राहुल की टेलीफोन लाइन वर्क नहीं कर रही है तो क्या वो कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाएगा या नहीं, तो ये आपको बताना है। Now internet etiquettes. There is a special set of manners for internet called netiquette. Some netiquettes are listed below. Do not give personal information such as your address, phone number and school address without your elder's permission. Respect the privacy of other people as well. Use internet under the guidance of your elder. तो जब भी आप नेट चला रहे होते हैं तो नेट में आपके इंटरनेट चलाते समय कुछ एटिकेट्स आपको फॉलो करने चाहिए, जिन्हें हम नेटिकेट्स कहते हैं।
तो किसी को भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे किसी से बात कर रहे हैं, वो आपका जानकार नहीं है, तो आपको उसके साथ अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है विदाउट योर एल्डर्स परमिशन, ठीक है। अगर कोई आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो सबसे पहले उसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। दूसरे लोगों की प्राइवेसी को आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। मतलब दूसरों से भी आपको उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी है। और अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करना है किसी भी एल्डर की गाइडेंस में, बिना उनकी गाइडेंस के आप इंटरनेट यूज़ ना करें। Computer etiquette. A computer may come under a virus attack if songs or games are downloaded on it from the internet too often. Install antivirus to protect your computer from any harmful virus program. तो अगर हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट से कभी कभी हम सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, तो इन गेम्स के थ्रू या इन चीज़ों के थ्रू हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो हमें अपने कंप्यूटर पे एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल वायरस प्रोग्राम से बचाता है। Tricky terms: Internet, the world's largest network of computers. Website, a collection of web pages. Web page, a page on the internet having information. Home page, the first page of a website. Web browser, software used to access information on the internet. तो इस चैप्टर में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, होम पेजेस और वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ इंटरनेट को चलाते समय हमें क्या क्या एटिकेट्स, क्या क्या मैनर्स को फॉलो करना चाहिए वो भी हमने जाना। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.